कौन से इंटरनेशनल लोग वहाँ पे आ चुके हैं, इन सब के बारे में जानकारी लेने के लिए और जानकारी सभी तक पहुँचाने के लिए हम लोग इस कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहे हैं। वो सब लोग इस कॉन्क्लेव में का हिस्सा बनेंगे और वो सब अपना रोल्स को बताएंगे कि किसी भी शहर को स्मार्ट बनाने के लिए हम इन सेक्टर से क्या क्या योगदान दे सकते हैं। जैसे एजुकेशन का क्या योगदान हो सकता है, स्मार्ट हेल्थ केयर से हम लोग कैसे स्मार्ट बना सकते हैं अपने शहर को। तो ये सब चर्चा करने के लिए हम लोगों ने इस विषय को लिया है और इसमें बहुत सारा ये जो इवेंट है ये एक सीरीज ऑफ इवेंट है। हम लोग हर 2 से 3 महीने में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे अलग अलग शहरों में और इसमें हम सरकार से भी इसमें हम लोगों को सहयोग है, सरकार भी इसमें हमारा समर्थन कर रही है क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो देश में और दुनिया में सब जगह जाना जाता है स्मार्ट सिटी। बट स्मार्ट सिटी में हम लोग क्या क्या स्मार्ट बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं, ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है जिसके ऊपर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसमें पावर सेक्टर जो एक बहुत बड़ा की सेक्टर है इस स्मार्ट सिटी के लिए, कितनी हमें पावर की ज़रूरत है, एनर्जी की क्या ज़रूरत है, इसके ऊपर हमारे साथ पावर सेक्टर की कुछ दिग्गज कंपनियां रहेंगी। इसी तरह रियल एस्टेट में हम कैसे रियल एस्टेट किस क्या योगदान दे रहा है स्मार्ट सिटीज़ के लिए, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा आयोजन है, एक बहुत बड़ा विषय है जिसके ऊपर हम लोग प्रयासरत हैं कि ये सब पहले हर शहर, हर गांव और दुनिया के हर कोने तक हमारा ये विषय पहुंच पाए। इसमें इंटरनेशनल हमने डेलीगेशंस को भी बुलाया हुआ है, जैसे कि हमारे साथ हमारे पार्टनर्स मौजूद हैं। ये लोग हमारे साथ कंट्री पार्टनर हैं और ये लोग एक कंसल्टिंग कंपनी है जो स्मार्ट सिटीज़ को कैसे स्मार्ट बनाया जाए, इसको यूएई सरकार के साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं। और आज हम इंडिया में आज हम 16 देशों में और इसको आयोजन करने का हमारा आने वाले समय में प्लान है। हमारे साथ डॉक्टर शोभा कुलश्रेष्ठ हैं, थोड़ा सा आप भी। Good afternoon and welcome all of you. I have to speak in English because they must know what we are doing. Alright. Now, the smart city concept started in India very seriously in 2014, and already we have 11 cities in the country which claim to be smart cities. We have to see where they have done well, what have been the follies, and what more needs to be done so that the identified 8 cities of UP can be made into smart cities. As of now, we know that 8 cities have been identified to be, funded and focused for smart cities. This conclave is being held majorly with about 12 to 14 verticals, which Ashish Gupta has already told you, starting with the diplomatic conclave, where we want trade commissioners and diplomats to participate so that they know what extension of trade can be done between India, UP especially, and the foreign diplomats. Then we have the real estate vertical, where we are hoping to meet real estate people who will find business opportunities to make these cities smart. Similarly, we have the IT sector, because IT is handling everything, right from banking to your food which comes home. So we engage them also. And then tourism is growing in a big way in UP. I think it's going to be the largest state of the country to promote tourism. And when we have foreign delegates coming, then they know what we have to show them. And then after that, we've got health and wellness. Yoga, meditation has taken up in a big way in Europe and the West. And though we are the pioneers and we started this, but they all claim that now they are experts on that. So we've got to see how we can collaborate and see that these things also increase. And this 3-day conclave is going to bring not only participants, attendees, will bring youngsters, there are students from colleges, universities who are coming to see how they can contribute towards this. And it's not a small agenda to have a smart city conclave. It's huge, and it's not a one-man show. And the press like you is the one who's going to help us to propagate and extend this all over UP. I mean, that's what I have to say. And when they meet there, we are giving them an open hand to have business meetings. They can have MOUs, they can have transition, they can talk about anything. Either it can be export from the state of UP to foreign countries, or import from there to their states to be able to become smart cities. Is there any business delegates from the outside of India? Yes, no, business delegates presently are there, but there are a lot of them who had Zoom meetings with us who are promoting How business. many sessions you are going to do in 3 days?
we've got about 6 sessions every day. 6 sessions every day. Three pre-lunch and 3 post-lunch. Okay. So we've identified that one day the diplomatic conclave is there. One day, at one session, then we have real estate, then we have IT, then we have health and wellness, we have travel and tourism. So like those 12 verticals, we are giving time to different people. As per you, what is the idea of smart city for the people? For rather the than people, tourism that means and they other have things? better facilities. They get out from the rural to the urban transition without leaving the rural. See, we cannot do away with the rural areas. We've got to see, while being rural, they become smart. They get all the technology and all the facilities that are available, that were available to metropolitan cities, A cities, which have come to B cities, and also the C cities have to come to that level. So the agenda is to make those C cities into B cities so that they can match with the metropolitan cities. Okay, any questions? इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार काफी कदम उठा रही है। अभी एक अर्बन चैलेंज फंड की स्थापना की गई है, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपया इन स्मार्ट सिटीज के लिए दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए छोटे शहरों के लिए, 50 छोटे शहरों को स्मार्ट सुविधाएं देने के लिए अभी आयोजन किया। तो सरकारें इसमें काफी योगदान। हाँ, आप Yes. First of all, thank you for all coming. Thank you, Mr. Ashish. Thank you, Ms. Shobha. We're Access Arabia. We're technically based in Riyadh, and we have a presence in London and UAE. We're here to unlock opportunities between Saudi Arabia and India. We're here to, get as much as information as possible. We already have a lot of investments happening in the GCC, so we're just going to be, getting everyone together, opening up opportunities for the two countries to benefit from each other, or the GCC and India itself. So this is technically what we're doing. And here my partner James, would you like to add anything? Again, thank you for having us. It's very exciting for us to be in India. I think we've already got a huge amount of bilateral trade and investment between the GCC and countries like Saudi Arabia and India. There's a huge amount of interest in the Indian market from companies we've spoken to come into the GCC. We see one of the biggest opportunities at the moment is Saudi Arabia. If we're talking smart cities, the Saudi sort of estimates on construction spend between now and 2030 is $1.3 trillion, of which I think 600 billion is allocated for real estate. So there's massive opportunities. India's got some really good, strong companies that I think would be perfectly placed to come into the Saudi market and help develop that sector. So we're here to meet as many companies as possible. We're here to help guide companies into the UAE and Saudi markets, and do what we can with our strategic partner, GCCI, who have an unmatched knowledge of the business landscape in India, networks across the business landscape, and I think together, there's a huge amount we'll be doing to help build smart cities in Saudi Arabia and the UAE, and likewise helping investors and companies from the GCC enter the Indian market. I think there's a lot more to come. इंटरनेशनल सिटीजनशिप की बात की है आपने, तो किस तरह की भूमिका रहेगी देश की? आज पूरे दुनिया में इंटरनेशनल सिटीजनशिप की बात हो रही है। बहुत सारे देशों ने इन्वेस्टमेंट बेस्ड सिटीजनशिप ऑफर कर रहे हैं। तो हमारा भी सरकार को ये अनुरोध है कि हम लोग हिंदुस्तान में भी कुछ इस तरीके की फैसिलिटीज दें कि लोग हमारे यहाँ जो इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको हम लोग सिटीजनशिप प्रोवाइड कर सकें। तो इस मुद्दे को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल सिटीजनशिप होती है उसके तो बहुत सारे क्राइटेरिया जी तो वो कैसे मैडम, अभी जो क्राइटेरिया है वो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट का। जो हमारे यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो काफ़ी लोग ये चाहते हैं कि हमें इंडिया की सिटीजनशिप मिले। तो ऐसा एक प्रावधान होना चाहिए सरकार की तरफ से कि जो हमारे यहाँ बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको सिटीजनशिप भी प्रोवाइड की जा सके, जिससे कि वो हिंदुस्तान के नागरिक बन सकें। As you are a consultant from Dubai, so what opportunity you are looking here in India from this content?
we're talking about every single sector you can think of, but right now we're focusing, as Mr. Ashish said, we're focusing about the smart cities, we're focusing about real estate, we're focusing about technology. Okay. I need to boost it up. As I said, we're focused about every single sector, but currently now we're focused about smart cities, real estate, anything that has to do with technology. So these are the sectors now of our main focus. Yes. आपके अनुसार क्या पक्ष और विपक्ष जो होता है दोनों प्रभावित करता है जो स्मार्ट सिटी बनने की वो होती है? देखिए, पक्ष और विपक्ष की बात तब आती है जब हम राजनीति में जाते हैं। यहाँ बात हो रही है सुविधाएं पहुंचाने की। सरकारों का भी तो हस्तक्षेप होगा। जी, देखिए, अभी हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे जितने भी सांसद हैं, विधायकगण हैं, पार्षद हैं, मेयर हैं, जो भी हैं, ये सब लोग एक डेवलपमेंट का हिस्सा हैं। इसमें हम पक्ष विपक्ष के लिए बात नहीं कर रहे। हम ये चाहते हैं कि पक्ष हो या विपक्ष हो, वो सब इस मुख्य धारा में आए और सब लोग विकास की बात करें, जिससे कि भारत का एक विकसित देश बनने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है वो पूरा हो सके। जी जी जी, लेकिन उसके लिए हम लोग भी एक भागीदार बनना चाहते हैं। हम लोग अलग अलग तरह से अलग अलग आयोजनों को करके, टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करके, स्मार्ट एजुकेशन के ऊपर बात करके, स्मार्ट हेल्थ केयर के ऊपर बात करके, हम लोग इस सबको धीरे धीरे देश के हर नागरिक तक पहुंचाना चाहते हैं। जी, हमने इसमें श्री आशीष सूद जी जो गृह मंत्री बने हैं अभी दिल्ली सरकार में, उनको हमने इसमें आमंत्रित किया है, जिनके द्वारा ये उद्घाटन होना है और कैप्टन 11 बजे होना है। और कैप्टन विकास गुप्ता जी जो स्टेट मिनिस्टर हैं यूपी में, वो भी इसमें रहेंगे और कुछ विधायकगण भी रहेंगे और मिस्टर डॉक्टर वाशड़े हैं जो चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ ओपन स्कूल और एजुकेशन दिल्ली सरकार, वो भी इसमें रहेंगे हमारे साथ और इंडस्ट्री डेलीगेशन भी रहेगा। तो उद्घाटन इसका 11 बजे है। उद्घाटन सत्र 1.5 घंटे चलेगा, उसके बाद अलग अलग सेशन शुरू हो जाएंगे। इसकी भी कोई जानकारी हो? क्या क्या टॉपिक्स रहेगा, कुछ विषयों पे चर्चा होगा तो इसका मेंशन इसमें है नहीं। पूरे 3 दिन का 3 दिवसीय क्या रूपरेखा है? जी जी, हमने इसमें हर सेक्टर का अलग अलग एजेंडा तय किया है। जैसे हम लोग एजुकेशन जो हमारा रहेगा उसमें एजुकेशन कैसे स्मार्ट बन सकती है। अभी हम लोग स्मार्ट क्लासरूम बना रहे हैं, हम लोग स्मार्ट टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको स्मार्ट सिटी में क्या भागीदारी हो सकती है एजुकेशन की, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कौन लोग शामिल रहेंगे इस चर्चा में? इसमें एजुकेशन सेक्टर से जी, इसमें जैसे राणा प्रताप सिंह जी जो वाइस चांसलर हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के, वो इसमें रहेंगे। इसके अलावा IIMT यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं योगेश मोहन गुप्ता जी, वो भी इसमें रहेंगे। बहुत सारे चेहरे रहेंगे जो एजुकेशन सेक्टर से हैं। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर रहेंगे। ये कब होगा? 22 को होगा? ये कल होगा 21 को। एक जानकारी इसमें साथ में हम लोग को जी, हम आपको जी 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 हम आपको पूरा एजेंडा हम आपको दे दीजिएगा। जी 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 बिल्कुल। और दूसरा ये जानना चाहते हैं आपसे कि स्मार्ट सिटी बनाने का एक्शन प्लान क्या है आपका? देखिए साहब, हमारा स्मार्ट सिटी की चर्चा 2014 से हो रही है जी। अभी मैम ने भी कहा कि 11 सिटी है जो क्लेम कर रहा है कि स्मार्ट है। जी, दावा तो ये था कि 100 सिटी नहीं 100 के 100 शहर। आप कैसे बनाएंगे एक्शन प्लान? जी, देखिए, हम बना नहीं पाए, मतलब हम बनाने वाली हम अथॉरिटी नहीं है, हम तो उसमें सहयोग करना चाहते हैं। स्मार्ट शहर बनाना अथॉरिटीज जो हैं वो बना रही हैं, नगर निगम उसमें बहुत बड़ी भूमिका बना रहा है, लेकिन हम लोग उसमें इस तरह से सहयोग करना चाहते हैं जो टेक्नोलॉजी वाइज, जैसे अगर हम कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, अभी साइबर सिक्योरिटी का सब जगह चर्चा हो रही है और बहुत ज्वलंत मुद्दा है साइबर सिक्योरिटी। तो मैं आपको एक जानकारी साझा करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले एम्स दिल्ली में, एम्स का पूरा सिस्टम हैक कर लिया गया साइबर हैकर्स के द्वारा, और वो सिस्टम 3 घंटे तक पूरा हैक रहा। वो एक तरह से रैंसम वेयर उसे बोलते हैं, वो उस तरह का था जिसमें एक रैंसम भी मांगी वो बाद में, लेकिन सब वो मैनिपुलेट हो गया, वो फिर बाद में सही भी हो गया। तो वो जो साइबर अटैक था वो हुआ थ्रू साइबर, ये जो कैमरे लगे हुए हैं हमारे यहाँ सिक्योरिटी कैमरे। तो एक नया प्रोविजन शुरू हो गया है हैकर्स के द्वारा कि वो हैक करते हैं पूरे सिस्टम को आपके कैमरों के द्वारा।
अभी हम लोग उसमें पता भी नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ जो कैमरे लगे ये ऑलरेडी हैक हो चुके हैं। तो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी हमने ईजाद की है, हमारे एक पार्टनर कंपनी ने, वर्ल्ड में अकेली पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो इस हैकिंग को, जो सिक्योरिटी कैमरों के थ्रू हो रहा है, इसको पूरी तरह रोक सकते हैं। ये हैकिंग, रैंसम, ये स्मार्ट सिटी का हाँ सर, मैं वही साइड इफेक्ट है आशीष जी, या आशीष जी, हम उसके साइबर सिक्योरिटी benefit? के बारे में बात नहीं कर रहे। हमें जानना चाहिए आपकी भूमिका क्या है। जैसे भी आपने कहा कि अर्बन डेवलपमेंट फंड है गवर्नमेंट की ऑलरेडी, तो आप इस स्मार्ट सिटी बनने में आपकी कंट्रीब्यूशन क्या, आपका क्या योगदान रहेगा? जी, हम लोग इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी को हम लोग प्रपोज करेंगे सरकार को कि इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाए। आप फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे या पैसे लेंगे, सरकार से पैसे मांगेंगे? नहीं, हम अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ एक जानकारी साझा करना चाह रहे हैं सरकार के साथ में। वो तो जो कंपनियां हैं जो इस पद्धति को, यस, हाँ जी हाँ, अभी हम लोग इसका उद्देश्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी सरकार तक पहुंचा पाएं और लोगों तक पहुंचा पाएं। आपकी संस्था को बने हुए कितना समय हुआ? जी, हम लोगों ने शुरुआत किया था जून 2020 में और आज हम लोग 16 देशों में पहुंच चुके हैं। जी, यहाँ के मुख्य कमेटी मेंबर्स? मैं सीईओ हूँ इसका, और हमारे जो को फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हैं वो मिस्टर माइक इवानोव हैं। वो रोमानियन सिटीजन है, बट वो किसी कारणवश आ नहीं पाए। वो एक फ्रेजर वैली यूनिवर्सिटी है कनाडा में, उसके डीन भी हैं, तो वहाँ पर एग्जाम चल रहे हैं, इस वजह से वो आ नहीं पाए। और मैडम है हमारे साथ डायरेक्टर, और बाकी अलग अलग देशों में हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छा करो। इनके लिए हो रहा है, क्या कार्यक्रम है, क्या प्लान है, कौन उद्घाटन करेगा, कितने बजे करेगा, कब समाप्त होगा, पूरा सा शॉर्ट में जानिए 1 से 1.5 मिनट। ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है। इसका उद्घाटन गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में कल 11 बजे 21 अप्रैल को होगा, और जिसका उद्घाटन माननीय आशीष सूद जी जो गृह मंत्री हैं दिल्ली सरकार, माननीय कैप्टन विकास गुप्ता जी जो स्टेट मिनिस्टर हैं भारत यूपी में, तो इनके द्वारा होगा। और इसमें कई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहेंगे और उद्योग जगत के लोग भी रहेंगे। और इसके बाद हमारे बहुत सारे सेशंस इसमें अलग अलग सेक्टर को लेके हम आयोजित करेंगे, और इसमें B2B मीटिंग्स भी होंगी, इसमें कोलैबोरेशंस भी होंगे, इसमें MOU साइन भी होंगे, और इसमें हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस को कैसे हिंदुस्तान में बढ़ावा दे सकते हैं इसके ऊपर चर्चा होगी। धन्यवाद। कौन कौन लोग शामिल होंगे इसमें? इसमें उत्तर प्रदेश सरकार से काफ़ी अधिकारी शामिल होंगे, उद्योग जगत से शामिल होंगे, हेल्थ केयर से, एजुकेशन से और पावर सेक्टर से, अलग अलग सेक्टरों से लोग शामिल होंगे। कितनी कंट्रीज में पार्टिसिपेट करेंगे? इसमें अभी 9 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, और कुछ लोग ऑनलाइन और कुछ लोग ऑफलाइन पार्टिसिपेशन होगा। इससे पहले कितने कॉन्क्लेव? देखिए, ये स्मार्ट सिटी जो ग्लोबल चैम्बर का जो है ये फर्स्ट है, बट हमारा जो नेक्स्ट एडिशन है वो जुलाई 2nd वीक में हम गुड़गांव में करने जा रहे हैं। उसके बाद 3rd हम लोग अक्टूबर में देहरादून में करने जा रहे हैं। तो एक तरह से सीरीज है जो इस कल जो आयोजन हो रहा है इसके द्वारा शुरू हो रही है। स्मार्ट सिटी बनाने में आपकी संस्था का क्या रोल होगा? हम सरकार को और लोगों को जानकारी उपलब्ध कराना चाहते हैं, जिससे कि जो टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो सकती है, बेस्ट टेक्नोलॉजी जो यूज़ की जा सकती है स्मार्ट सिटी को बनाने में, उसका लोगों तक जागरूकता पहुँचे और सरकार तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुँचे, उस जिससे हम यूज़ कर पाएँ। कितने सेशन में चर्चा आयोजित की जाएगी? जी, प्रतिदिन 4 से 5 सेशन इसमें रहेंगे अलग अलग सेक्टर्स के, और दूसरे दिन 22 तारीख को हमने डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव भी इसमें है, जिसमें 4 देशों के एम्बेसी से रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं। धन्यवाद। विद्यार्थियों को भी बुलाया गया? जी, विद्यार्थियों को भी बुलाया गया। थैंक यू। थैंक यू सो मच।